बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नाउ ये पूरे आपका मैकेनिक्स का मोस्ट फंडामेंटल पार्ट है, पूरा मैकेनिक्स जो है आपका 11th में। सो द मोस्ट फंडामेंटल concept of mechanics is this concept which I'm going to teach you. So if you master this concept, then you will be able to analyze, understand, and attempt any of the problems which will be given to you. Any problems in mechanics has to have this. आएगा ये concept हमेशा, ठीक है? So this concept you have to practice very nicely. You have to master this, ठीक है? And if you do this nicely, then you will be able to solve all the problems very quickly, fast. But आपको इसका habit बनाना पड़ेगा. जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये करना है, ठीक है? ठीक है तो Yes, sir. इतना बोले हम, थोड़ा बोले ठीक है। हाँ सर, ठीक है देवांजन रिजू, हाँ सर। ठीक है। So this concept is called as free body diagram. Very important. इसको लोग बोलते हैं free body diagram. Now what is the free body diagram? Basically, if I write its definition, this is a diagram in which all the forces are shown as arrows. Object is taken as point object, ठीक है? हाँ, so this is a very very important definition of free body diagram. That means this is a diagram in which all the forces acting on the body are shown as arrows. जो भी forces पे act कर रहे हैं उसको arrow के फॉर्म में शो करेंगे, and जो हमारा ऑब्जेक्ट है वी शो इट एज अ पॉइंट, एक पॉइंट के फॉर्म में उसको शो करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? सो लेट अस टेक सम कॉमन एग्जांपल्स. सपोज यू टेक अ mass like this which is connected to a rope. एक rope से connected है हमारा mass, ठीक है? So let me call this body है. So if I want to make the free body diagram, इसको FBD भी बोलता है. So if I want to make the FBD of this, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. First of all, you show this object A as a point object, ठीक है? ऐसे करते हैं. Then there is a gravitational force acting downwards on this object, right? And because this object is connected to a rope, to a string, so there will be an upwards force in the string, which is called the tension force, right? ऐसे होगा, Yes, sir. है ना? So there is the tension force. So ये हमारा free body diagram हो गया A object का. सो पॉइंट से रिप्लेस किया हमने इसको, और जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है टेंशन एंड एमजी, और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, सो दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट, ठीक है? सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स, द बेसिक डायग्राम विल ऑलवेज बी गिवन, बट इट इज ऑलवेज गुड टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इफ यू डू इट नाइसली. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. सपोज आई टेक अ ब्लॉक which is kept on the ground. Mass m, it has a mass m. मान लो इसको b बोल देते हैं. So if I want to draw the free body diagram of this, कैसे कर सकते हैं इसको? सर ब्लॉक नीचे की तरह फोर्स देंगे, मतलब mg देंगे, और ग्राउंड ब्लॉक की तरह फोर्स देंगे. या
So I'll replace this point an object by point mass. एक point के से point से replace कर देंगे. There will be a gravitational force mg acting downwards. And ये तो mg खुद से नीचे pull कर रहा है. But also this block is connected to the ground also. Right. So there will be upward force, normal reaction also on this block. हो गया ऐसा? हाँ सर. There is a Yes, normal sir. force upwards, mg नीचे है. ठीक है. So now due to this what will happen? तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम और अभी का. और कोई फोर्स तो है नहीं इसमें, है ना? तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आपको एक और ब्लॉक दिया हुआ है and on this block there is a force F which is acting at an angle theta. ठीक है. एंड अभी आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. सी बोल सकते हैं इसका. तो कैसे करेंगे इसका? बताइए. So first of all you have to show this object as a point object. तो इसको हम यहाँ शो कर दिया सी ऑफ. ठीक है. इसमें कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? There will be a downward force mg. There will be a normal reaction upwards जो ग्राउंड और इसके बीच में लगेगा. And there will be this force also. ये फोर्स है हमारा. There is an angle theta. होगा ऐसे? सर उस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा ना, नीचे हाँ. तरफ एक फोर्स लगेगा. Then हाँ वो ठीक है, बट नॉर्मल जो फोर्स है वो मैंने दिखाया उसको. फ्री बॉडी डायग्राम में इनिशियली ऐसे दिखा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स देन यू कैन टेक द कंपोनेंट्स आल्सो. ठीक है. तो इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी कंपोनेंट विल लाइक दिस एंड एक कंपोनेंट ये होगा. सो दिस विल बी एफ साइन थीटा एंड ये जो कंपोनेंट है इसको एफ कॉस थीटा ले सकते हैं. ठीक है. एंड कर सकते हैं फिर. समझ में आ गया? So there is a free body diagram for this block C. Yes, sir. Is it clear? Devanjan, सर Nikisha? हाँ हाँ, एफ साइन थीटा तो mg के साथ ऐड होगा तब. मतलब मैं बोल रहा हूँ तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा होगा. हाँ वो तो पढ़ेंगे आगे. पहले डायग्राम बनाते हैं ना जी. ठीक है. हाँ. सब लोग समझ में आ गया?